let's try to do that. You get that the line x over a plus y over b equals to 1. Now this equation is in a particular format. कौन सा वाला format है ये किस form है? It's the intercept form, right? Bilal and Saad are telling me in the, वो हमने कल पढ़ा था कि ये a जो होगा वो x intercept होगा और b जो होगा वो y intercept होगा. जब इस फॉर्म के अंदर है तो ये आगे भी यही कहता है where a and b are constant intersects the x and y axis at the point a and b respectively. तो a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0 और b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b. The midpoint of AB lies on the line 2x plus y equals to 10 and the distance AB is equals to 10. Find the values of A and B. तो इसका पहले तो मैं ये डिस्टेंस वाला आइडिया लगा लेता हूँ. डिस्टेंस वाला आइडिया क्या लगा सकता हूँ कि अगर मुझे पता है डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 10 है तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेता हूँ. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा? Let me just put it here. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगेगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10. तो ये बन गया रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर equals to 10. How do I get rid of the root? I square both sides. So ये बन जाएगा a square plus b square equals to 100. My screen is okay. A square plus b square equals to 100 बन गया. तो ये एक equation हो गई, दो unknown हो गए. Where do I get the second equation from? Any ideas? If I have two unknowns, I need two equations to solve this, right? सर ये जो a and b हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, एक कोऑर्डिनेट डाल देंगे. ये जो 2x plus 10 तो वो तो a की वैल्यू आ जाएगी. Do you think that's the right answer? नहीं तो फिर साइमल्टेनियसली नहीं सॉल्व. देखो तुम कह रहे हो ना कि एक कोऑर्डिनेट डाल दें तो ये बन जाएगा. ये देखो, sorry, but what does the question say? It says that the midpoint of AB lies on the line. तो पहले तो midpoint निकालना पड़ेगा ना. A plus 0 divided by 2 and 0 plus b divided by 2. सही है. और ये हो जाएगा a over 2 comma b over 2. तो हमने कल क्या पढ़ा था कि when a point lies on a line, you can insert that point back into its equation. यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जब सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन इंट्रोड्यूस कराई थी, मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज एन इक्वेशन. तो हमने ये डिसाइड किया था कि व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट यू कैन put it back into that equation. So what I can do is I can take this midpoint and I can insert it into this equation. So I get a plus b over 2 equals to 10. So yeah, so I have two equations now. Can I simplify this first and say that this equation should be this? अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मैं इसको simultaneously solve कर सकता हूँ. With this one, क्या करना पड़ेगा? एक substitution बनानी पड़ेगी. This is equation number 1. This is equation number 2. I am trying to solve simultaneously, so I create a substitution 20 minus 2a and I put it in 1. Ten and 6. Ibrahim is telling us 10 and 6. So yeah, thank you, Ibrahim. So b की क्या values हो जाएंगी? 20 minus 2 times 10, that is 0. 20 minus 2 times 6, which is 8. So if you notice, उसने कहा where a and b are positive constants. तो क्या करूँगा मैं इसको discard कर दूँगा.
Why? Because it's not B is not a positive constant. The next thing is perpendicular bisectors. अब perpendicular bisectors होती क्या है? Perpendicular bisector of A and B is the line passing through the midpoint of AB and cutting the line AB at 90 degree. इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स है A and B, सही, and you have a line joining those 2 points, तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाऊंगा? मैं कहूँगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जिसको यूं सेंटर से कट करेगी, सही है, मिड पॉइंट पे कट करेगी और क्या एंगल बनाएगी? 90 डिग्री एंगल बनाएगी. इस लाइन को जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं, सही है. इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं. अब इस लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी हो तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने इक्वेशन निकालनी है तो वही आपको दो चीजें चाहिए होंगी. यू नीड द ग्रेडियंट एंड यू नीड अ पॉइंट दैट द लाइन passes through. So in this case, the gradient is going to be through the perpendicular, and it's also going, and the point that you're going to use is going to be the midpoint. So get the find the equation of the perpendicular bisector of the line joining A and B. तो पहले तो मैं midpoint of AB निकाल लेता हूँ. Okay, मैं लिखूंगा 4 plus 2 divided by 2 minus 5 plus 9 divided by 2. What do I get? I get 3, 2. ये midpoint आ गया. So मेरे पास I have found a point that the line passes through. Now I need to find the gradient of AB. So ये हो जाएगा y2 minus y1 over x2 minus x1. I get minus 7. इसको perpendicular में कैसे change करते हैं? Gradient of perpendicular क्या हो जाएगा? Gradient of perpendicular हमने कल पढ़ा था कि it's the negative reciprocal of this. So ये हो गया gradient of perpendicular is 1 over 7. Now equation of perpendicular bisector. Okay, equation of perpendicular bisector. Y minus y1 m x minus 7y minus 14 okay, that's the equation of the perpendicular bisector. Given that the perpendicular bisector of the line joining A minus 1 comma 2 and B is find the coordinate of B. So yeah, that's the question. Nothing from the book, which is why I've written it on the board. सही. अब मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में मैंने 2 पॉइंट्स दिए थे, आपसे कहा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करें. अब मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दे दी है और मैंने कहा कि एक पॉइंट मिसिंग है, वो आप फाइंड करें. तो थोड़ा बैकवर्ड्स जाना है उस प्रोसेस में जिस प्रोसेस को अभी हमने किया. Ali, whenever you have such a question, the best idea I could give you when solving such questions is to visualize it. आप डायग्राम बना के देख लें छोटा सा कि भाई करना क्या है मुझे.
सही है, देन यू गोइंग डाउन द राइट रोड बट यू गॉट स्टक, राइट? कि तुम्हें नहीं पता चल रहा आगे मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए डायग्राम बना देता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा ए बी है और ये तुम्हारी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जिसकी इक्वेशन तुम्हें पता है -3x+9। सर मैं बताऊं? बोलो वलीद। वलीद राइट? सर हम लोग के पास ए का कोऑर्डिनेट है हाँ, एंड हम लोग जो है रेसिप्रोकल करके ग्रेडियंट निकाल ग्रेडियंट हो जाएगा इसका 1/3। तो 1/3। हम एक इक्वेशन बना देंगे, दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक पड़ी हुई है सही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, एक इक्वेशन हो जाएगी और एक हमारे पास पड़ी हुई है ए बी की इक्वेशन। तो हम इन सही है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बी का कोऑर्डिनेट आएगा या कुछ और आएगा वलीद? सर मिड पॉइंट सर आएगा और मिड पॉइंट से मिड बी का पॉइंट कोऑर्डिनेट, आएगा, सही है, हाँ, एब्सोल्युटली मिड पॉइंट आएगा, सही और है, फिर दैट्स जो है गुड। हमको इसको मिड पॉइंट से बैकवर्ड्स वर्क करना आसान होता है, सही है। अच्छा, तो हमने किया क्या, हमने एक एक करके चीजें निकालते गए, फिर हम सोचते गए कि भाई क्या करना है। अली ने सबसे पहली बात मुझे बताई कि सर आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, आपको एक ग्रेडियंट पता है तो आप दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ। परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट जो है वो -3 है, तो ए बी का ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/3। ओके, 1/3 हो गया। तो अली ने मुझे कहा कि इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लें। इक्वेशन ऑफ ए बी मैंने निकालना शुरू की। इक्वेशन ऑफ ए बी निकालने के लिए एक ही कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे जो मेरे पास है, तो मैंने कहा y-2 1/3x+1 हो जाएगा, 3y - 6 x+1, 3y = x+7। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई। जब दो इक्वेशंस हो जाती हैं तो मुझे ख्याल आता है कि भाई अगर ये दो लाइंस मीट कर रही हैं तो मैं इनका जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकता हूँ, सही है। इफ आई वर टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस करते हुए सीखा था कि जब हम किसी भी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है। इंटरसेक्शन पॉइंट इन दिस केस क्या है, m, सही है, in this case it's m. So let's try to solve the equation simultaneously. One of the equations is this and the other equation is this. Substitution बनी हुई है तो मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, मैं कहूंगा using 1 into 3 times -3x+9 20 10x x equals to 2, सही है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है -3 into 2 + 9 which is 3 again। तो मेरे पास एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,3, जो मैंने आपसे कहा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू ए के कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकाल रहा हूँ ना, तो मैं लिखूंगा -1 + x डिवाइडेड बाई 2, ये कल सीखा था आपने, 2 + y डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 3,3। So 3 equals to -1 plus x over 2. X equals to 7. 3 equals to 2 plus y over 2. Y equals to 4. So those are the coordinates of A and B. Oh, sorry, B. अच्छा वहाँ sorry 2,3 आया था, 2,3 sorry. Oh. Okay, sorry. Now this is read in the past papers once. This is not the past paper question. It's the one that was available in a book. So I put it there. मुझे बताएं कि ये अचानक से मैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्यों चला गया। ये आपको मैं कहता था वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करें, तो आप क्या कहते थे कि अगर ये यहाँ पे है तो जितने डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस से सामने बना देते थे, A' लिखते थे इसको। सर इसमें जो y = x+1 सॉरी, की लाइन है इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसीडर करेंगे। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ।
आ रहा हूँ जिस वेट यार में इसको अगर उसी तरीके से करें वो जो हमने पहले वाला सवाल करा तो आंसर नहीं आएगा। वही है, कोई सवाल वही है, बस दोस्त लिखा हो डिफरेंट तरीके से। रुक जाओ एक मिनट, मैं बता रहा हूँ। बस हाँ, इट्स द सेम क्वेश्चन। सही, मैं छोड़ दूंगा इसको एट सम पॉइंट, यू गाइस विल कंप्लीट इट, आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट इट। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई अगर आप ओ लेवल्स में याद हो तो रिफ्लेक्शन इस तरह करते थे, जितना इस साइड पे डिस्टेंस उतना ही उस साइड पे डिस्टेंस हो जाता था। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट होता था बीच वाला पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता था। तो अगर ये मिड पॉइंट होता था तो ये वाली लाइन जो होनी चाहिए, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो थी, shouldn't this line be the perpendicular bisector? सही है। तो मैं कह सकता हूँ कि the line of reflection is the perpendicular bisector of the object image line. Do you all understand this idea कि object image line यानी A अगर object है, B उसका image है, तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। तो अब आप सोचें कि मैंने आपको ए बताया है, सही है, मैंने आपको लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बताई है जिसकी आपको मैंने इक्वेशन बता दी है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। और मैंने आपसे पूछा है कि भाई b के कोऑर्डिनेट्स बताएं। अब ऑब्वियस सी बात है b कहाँ पे आएगा, जितने डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट्स b। अब मुझे बताओ क्या करेंगे, मैंने डायग्राम तो बना के दे दिया, सही है। मैंने यही आपको सिखाया कि जहाँ डायग्राम नहीं बना हुआ वहाँ पे अपने असिस्टेंट के लिए डायग्राम बनाएं, दैट शुड सिंपलीफाई थिंग्स फॉर यू। यस ट्राई टू कंप्लीट दिस नाउ। सही है, वही काम करेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे, एपी की इक्वेशन बनाएंगे, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो एम आ जाएगा। एम आ जाएगा तो फिर ए बी यूज करके भी आ जाएगा। ग्रेडियंट आ जाएगा, gradient of perpendicular is 1, gradient of AB is therefore -1, और फिर जो है equation of AB y minus y1 mx minus x1 y minus 5 minus x1। सही है, solve simultaneous। 3 sorry y equals to x plus 1 और y equals to minus x plus 8। So that's the midpoint, so 3 plus x divided by 2, and किसी को ना समझ आए तो प्लीज पूछो। Angle between line and axis, right? So what, and x-axis, sorry. What is the angle formed by the line y equals to acute angle formed by the line, acute angle formed by the line y equals to minus 3x plus 2 with the x-axis, सही है।
तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एंगल बिटवीन line and axis is tan inverse of modulus m. अब ये लिखा है, this is called a modulus. It makes negative numbers positive. It's also there on your calculator. मैं दिखा देता हूँ. It makes negative numbers positive. तो मैं करूँगा क्या, मैं करूँगा ये कि मैं लिखूँगा tan एंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूँगा tan इनवर्स ऑफ, इसका ग्रेडियंट कितना है, ग्रेडियंट -3 है ना, तो मैं कहूँगा मॉड्यूलस -3, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3. मॉड्यूलस जो है वो इसको पॉजिटिव बना देगा, हर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव रहने देता है. लेट मी जस्ट क्विकली शो यू वेयर इट इज ऑन अ कैलकुलेटर. इफ यू वर टू डू दिस ऑन अ कैलकुलेटर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं. Just opening it up. ओके, तो आप लिखेंगे शिफ्ट tan इनवर्स, और ये देख रहे हैं ABS लिखा हुआ है, दिस इज एन ABS रिटन यहाँ पे. तो इफ यू प्रेस दैट, बल्कि शिफ्ट दबा के इफ यू प्रेस दैट, नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन. ओके, आ गया मॉड्यूलस. अब इसके अंदर अगर आप -3 लिख देंगे तो ये खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा. तो अभी AS के अंदर जो है वो मॉड्यूलस की इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, इसलिए मैं नहीं करा रहा. ये डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 71.565 आ रहा है. एग्जामिनर कहता है कि भाई आंसर्स इन डिग्रीज शुड बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. आंसर्स इन डिग्रीज नीड टू बी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. तो हम लिख देंगे 71.6. सही. द ओनली प्रॉब्लम है कि अगर आपने इसके साथ नेगेटिव भी लगा दिया तो आपका आंसर सिर्फ नेगेटिव आ रहा होगा. अभी फिलहाल आपने ये अपने जहन में रखना है कि भाई एंगल नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप उसको खुद पॉजिटिव बना दें, या तो आप ग्रेडियंट को खुद ही पॉजिटिव बना दें या एंगल को पॉजिटिव बना दें, योर चॉइस. सही है. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan इनवर्स ऑफ दिस. ओके, या तो खुद ही पॉजिटिव बना दो या कैलकुलेटर पे प्लग इन कर दो, आंसर सेम ही आता है. यहाँ तक क्लियर है. सिंपल सा फॉर्मूला है, रिमेंबर दिस ओनली. इसी तरह एंगल बिटवीन टू लाइंस का ये फॉर्मूला होता है. I'm trying to wind this up so that we can take a break and then come back. It's tan inverse m1 minus m2 over 1 plus m1 m2. किसी को भी m1 कह सकते हैं, किसी को भी m2 कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा. इधर m1 जो है वो 2 है और m2 जो है वो 1 है. एक ग्रेडियंट 2 है और एक ग्रेडियंट 1 है. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 2 minus 1 over 1 plus 2 into 1. सही है. तो एज इट इज जाके कैलकुलेटर पे लिखेंगे, लिख लें, देखें क्या आंसर आता है. $18.4 आ रहा है मेरे हिसाब से. तो दो मैंने आपको फार्मूला सिखाए हैं जो इनफ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने इन फार्मूला को अपने पास रखना है. फाइंडिंग द एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स. सो इफ आई गिव यू अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मैंने आपसे कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेप formed by the coordinates.
सही है। मैंने आपसे कहा कि आप इसका जो है वो मुझे एरिया निकाल के बताएं जी, साथ हीरोज फार्मूला। सही है, हम हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं ये देख लें। इसका फार्मूला ऐसा होता है, एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट कि हमेशा बाहर हाफ लगा होता है। सही है, मैं पहले फार्मूला लिख रहा हूँ, इसमें लिखते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, और फिर दोबारा से रिपीट करेंगे पहला वाला x1 एंड y1। अगर 4 हैं तो पहला वाला रिपीट होगा, 5 हैं तो भी पहला वाला रिपीट होगा, और ये हाफ जो होता है वो हर शेप के लिए सेम रहता है। इट्स नॉट रिलेटेड टू द ट्रायंगल, इट्स रिलेटेड टू एवरी शेप। फिर हम क्या करते हैं इसमें, हम जो है वो इसमें ये, अब अगेन ये मॉड्यूलस लगा हुआ होता है क्योंकि कभी कभार इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। आप यूं डायगनली मल्टीप्लाई करें। सही है, आप लिखें x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1, आप इन सबको ऐड करें। फिर आप एक माइनस का साइन लगाएं, एक ब्रैकेट लगाएं, और अब आप जो है वो दूसरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, y1 x2 y2 x3, और इन सबको भी ऐड करते जाएं, y3 x4 और y4 x1। सही है, दैट्स हाउ यू फाइंड द एरिया यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ये सारे फार्मूलाज हैं जो कम कम नजर आते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू द लॉजिक और एनीथिंग, बट विल टॉक अबाउट द लॉजिक, सम ऑफ द लॉजिक इन अ बिट। सबको ये अरेंजमेंट समझ आई? अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। -6 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 0 18 0 -4। 20 आ रहा है यहाँ से, और इसका 0 कैसे हो गया? मैंने कोई नंबर गड़बड़ कर दिया। एक मिनट पहले, स्लो हो जाएगा ना। हाँ, लेट मी सी, मैंने कोई नंबर गड़बड़ कर दिया। इसको है ना 2 एंड चेंज कर लो, लेट्स 1 कर लेता हूँ, just to make sure that you get a proper something out of it. Okay, let's make it 2 and 1. I'm sorry, there's some mistake. सर 10 आ रहा है आंसर ओवरऑल एरिया। सही है, apologies for this। वो एक नंबर बीच में चेंज कर रहे हो ना, तो कंटिन्यूसली वो चेंज हो रहा होता है। ओके, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम कि इसी तरह क्रॉस वो डायगोनल्स मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। चलिए, अब लेट्स गो टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। व्हाट आई वांट टू शो यू फर्स्ट इज दीस क्वेश्चंस विद डायग्राम्स। हम ये वाला करते हैं। This is the question that I want to do first. It says the diagram shows a rhombus ABCD. The points B and D have coordinates this respectively and lie on the x-axis. The midpoint of BD is M. Find by calculation the coordinates of each of M, A and C. सही है, अब M, A और C के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले बताओ किसका कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे? M सबसे आसान है, वो कर लेते हैं। 2 + 6/2 10 + 2/2, ये हो गया 4,6। सही है, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब मुझे बताओ कि आप क्या फाइंड करो। ए को कैसे फाइंड करोगे? ए को कैसे फाइंड करना चाहिए? सर इक्वेशन निकाल के बी और डी की मिड पॉइंट के फिर इक्वल्स करके ए की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन निकालूं बी और डी की?
जी लाइन की। चलो इक्वेशन ऑफ बी डी निकाल लेते हैं, पहले ग्रेडियंट चाहिए होगा। सही, मुझे नहीं पता तुम सही कर रहे हो नहीं, आई एम जस्ट गोइंग विथ व्हाट यू आर डूइंग। ओके, इक्वेशन ऑफ बी डी, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसका क्या करूं? सही है, ये इक्वेशन निकलवा ली आपने इससे। सर इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालें और ए का एक कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट पड़ा है, तो बाकी सही दूसरा आ है, जाएगा। सही है, एक्सेलेंट। के इसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसका y कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। So this is basically the x-intercept of all these lines, but most importantly it's the x-intercept of this line that I can draw from here to here. सही है, और क्योंकि ये rhombus है तो ये कैसी लाइन होगी? This is going to be the perpendicular bisector। सही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेड ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए बी की इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, वैसे किसकी इक्वेशन की जरूरत थी? इक्वेशन ऑफ AC की जरूरत है। सही है, तो ये m ऑफ BD निकाला है, m ऑफ AC कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ AC कितना हो जाएगा? ग्रेडियंट ऑफ AC हो जाएगा हाफ। इक्वेशन ऑफ AC क्या हो जाएगी? y माइनस, अब मिड पॉइंट से गुजर रहा है ना, तो मिड पॉइंट को यूज कर लूंगा, वही मिड पॉइंट निकालने का मकसद भी था, एक तो पूछा हुआ भी था ये, लेकिन वो उसको यूज इस तरह करना है, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 12। ये तुम लोग चैट में लिखते हो ना, मैं देखता भी नहीं आ रहा। इब्राहिम साद, it's difficult to both look at the iPad and then at the screen as well. I can't, but you guys are right. सही है, ओके। इसमें क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए क्या रखना पड़ेगा? y0 -8 आ रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -8, 0। अब पहले मुझे बताओ, a निकालने का कोई और तरीका था? भाई ये देखो, ये क्या बना हुआ है? ये क्या होता है? सेम लाइन सर, सेम दोनों का डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम होगा। तो सिंपल सा ये नहीं कर सकते कि डिस्टेंस ऑफ BA इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ DA? AB और AD का डिस्टेंस सेम नहीं होगा? यूँ नहीं कर सकते थे क्या? कर सकते थे सर। ये हो जाता आसानी से, जो भी क्लिक करे आपको। क्वाड्रेटिक बनती सॉल्व हो जाता। सही है, so I could have done it that way too. I'm just showing it to you because एग्जाम के अंदर जो भी क्लिक करे आपने वो करना है। आपने कोई अपने आप को फिक्स नहीं करना कि सर ने ये बताया था तो यही करना पड़ेगा। आप जो आपके दिमाग में आ रहा है, रोम्बस की तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, मैंने डायगोनल वाली यूज की, आप डिस्टेंस वाली यूज कर ले, एज लॉन्ग एज आप सॉल्व कर लेते हैं। सही है, सो दैट्स अप टू यू। सही है, खैर ए आ गया हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए -8, 0। बताओ सी कैसे आएगा? सर एम हमारे पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले में ए के कोऑर्डिनेट्स को रख देंगे तो सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सही है, बिल्कुल। फॉर सी यूज मिड पॉइंट हम कहेंगे कि -8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 और 0 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। 16। एक और तरीका हो सकता था, दानियाल बताओ उसको सॉल्व करने का, सी के लिए सॉल्व करने का। भाई ये देखो, ये मूवमेंट और ये मूवमेंट बराबर होनी चाहिए ना। डज दैट मेक सेंस? कि मिड पॉइंट तक मूवमेंट है ना, बराबर होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक x कितना मूव किया है? -8 से +4 तक गए हो तो 12 मूव किया है, तो यहाँ से 12 आगे मूव कर लो, कहाँ पहुंच जाओगे? 16 पे। और कितना ऊपर आए थे? 6 ऊपर आए थे, तो 6 ऊपर चले जाओ, 6 ऊपर चले जाओगे तो 16 का 12 हो जाएगा। It's just that I'm showing you different ways of doing the same question. If you understand those, that's fine. जो मैंने लिखा है, that's something that I recommend. But you can obviously come up with shortcuts and
come up with an answer without doing a lot of calculations. Okay. वो पहले कहता है explain the y coordinate of d is 6. तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि since the diagonal is horizontal, सर इसमें ये नहीं लिख सकते कि the diagonal BD is parallel to x-axis, so coordinate of B and D 6. so coordinate of any point on that line, coordinate y coordinate of any point on that line must be same. So yeah, since the midpoint of the diagonals is also same, m of AC is the same as m of BD. तो हम कहेंगे कि 12 plus 0 divided by 2 and 14 minus 2 divided by 2. तो ये हो जाएगा 6, 6. सही है. Therefore, the y coordinate is 6. सही है. मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इसका m निकाला जाए तो ये 6, 6 आ रहा है. अब अगर यहाँ पे y 6 है तो थ्रू आउट जो होगा वो y 6 होगा, यहाँ पे भी 6 होगा और यहाँ पे भी 6 होगा. सही है. Express the gradients of AD and given that the x coordinate of D is h, तो मैंने कहा कि AD और CD in terms of h. AD 6 minus 2, h minus 0, ये पार्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ. 8 over h और CD ओके. दोनों हो गए. फिर उसने कहा कि कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड बी. तो तुम ग्रेडियंट्स को क्या इक्वल बना रहे थे? ग्रेडियंट्स को इक्वल तो नहीं बना सकते. व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेडियंट? सर हम ग्रेडियंट को ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ बी AD multiplied by CD equals to -1. एब्सोल्युटली. प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स -1 होता है जब परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. तो हम लिखेंगे 8 over h, 8 over 12 minus h equals to -1. 64 12h minus h square. दो आंसर्स क्या आ रहे हैं, कोई बता देगा? अली बता दो. and 4. तो 16 और 4 आ रहा है. तो एक जो -4 है +4 है. अच्छा माइनस, सही -4. तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 16, 6 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4, 6. सही है. जाहिर सी बात है बी आ जाएगा, एक डी आ जाएगा. तो हम इसको वैसे भी निकाल सकते थे ना, जैसे पार्ट 2 में AD का निकाल लें, अगर हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है. तो और क्या यूज कर सकते हो? सॉरी, आई डोंट गेट दैट. जैसे हमने AD का ग्रेडियंट नहीं निकाला, वैसे ही हम CD का भी निकाल सकते हैं. निकाला होता है बेटा, तेरा उसी को AD. अच्छा मैंने BD लिख दिया, सॉरी CD है ये. सर h तो सिर्फ d का x कोऑर्डिनेट था, तो b का भी ऐसे हो गया. देखो दो आंसर्स आए ना. अब क्योंकि डी और बी सेम लेवल पे है ना, उनका जब एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा तो अब डी के दो ऑप्शंस तो नहीं हो सकते. द आइडिया इज कि ये वाला ट्रायंगल से फ्लिप होके यूं फिट हुआ है ना,
तो उसकी जो डायनामिक्स है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही परपेंडिकुलर्स हैं वही सब है। तो हमारे पास अगर डी आ गया लेट्स से तो तुम वैसे भी करके निकाल सकते हो कि तुमने कहा ये मिड पॉइंट है, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, करोगे तो वही आंसर आएगा फिर। ओके, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाँ सारे लिखना शुरू करूँ 0 -2 अभी मैं सही से करके दिखा देता हूँ बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ी सी मुझसे गड़बड़ हो गई थी। 60 आंसर आएगा। हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी एंड आई जस्ट डूइंग इट अगेन। और पहला वाला रिपीट करना याद रखना है आपने। तो हाफ 0 -64 72 32 माइनस ब्रैकेट 8 72 14 इंटू 16 क्या होता है 196 प्लस 28 कितना होता है 304 324 324 224 224 सॉरी ओ 0 नेगेटिव में आ रहा है ये नहीं सर, अंदर 160 पहले आंसर। अंदर पहले क्या नहीं अंदर तो नेगेटिव आना चाहिए ना -64 प्लस 72 वो मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो रहा है ना। सर इसका एक और तरीके से भी हो सकता है ये। क्या सर अगर हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स जो है ना, अगर हम जो है ए और बी जो है उसका वो डिस्टेंस निकालें और ए और डी का डिस्टेंस सही है निकालें। निकाल लो तो लेंथ इनटू विड्थ कर लोगे योर चॉइस ऑन हाँ दैट। सही है मेजॉरिटी में तुम्हें क्वेश्चंस बता रहा हूँ दोनों तरीकों से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ कोई कंपल्सन नहीं होती है फार्मूला यूज करना है फार्मूला छोटा होता है इसलिए हम यूज कर लेते हैं। सर ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये सही है या हमको चेक कर आपको मार्किंग स्कीम है? मार्किंग स्कीम है लेकिन सही है बेटा यार सर टेंशन ना लो। 160 है। श्योर हाँ सर 160। चेक करो एक दफा। सर कर लिया। मेरे पास तो 328 आ रहा है अंदर किसी और ने कैलकुलेशन की। मार्किंग स्कीम खोल लो। तो सर मैंने आपने कैलकुलेट -14 का 64 निकाले जबकि 58 होना चाहिए और 56 होना चाहिए। कौन सा वाला सर -4 इंटू 14 का आपने -64 लिखा हुआ है, वहाँ पे अच्छा -56 वो होना चाहिए। सही 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 है फिर 160 आ जाएगा ना। ओके